inrex.com. Sanjay, let me just give you an overview of the organization. Inrex.com was founded 3 years ago by Mr. Amit Shrivastava. He is the current founder of the organization. The ultimate vision and mission of the organization is simple, is to give investors an experience that they have never had in their life. The most efficient and smooth journey when it comes to investment. This is our simple vision mission. On a macro level, we want to transform the way we invest, but on the micro level for next 5 years, this is what we intend to do. Now what else? Secondary goal that we have is to give an opportunity. आप सभी यहाँ पर हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड, हिंदी में क्या बोले, बिखरी हुई इंडस्ट्री है, राइट? मतलब 2 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 2 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं. प्रोफेशनलिज्म एंड लैक ऑफ कल्चर जो हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से शायद आज तक इंडस्ट्री में वो स्टेबिलिटी नहीं आई, या एक प्रोफेशनल जो अकेले काम करता है वो कभी सिक्योर फील नहीं कर पाया. सो द सेकेंड goal or mission is to give security, culture, an environment where you can grow as an individual without being an employee, right? You can be a businessman in collaboration with us and still enjoy the environment, culture that we bring, professionalism that we bring, and you can grow your real estate career with us. These are 2 simple goals that we have as a brand. The founder is here, somewhere here in the crowd, but can we have a round of applause for the founder, Mr. Amit Kumar Shrivastava, please? He will never come here on the stage और सबके सामने आके बोलेंगे नहीं, but still it is very important that I tell you few of the reasons why I work with Inrex or what makes me wake up every day. हर दिन मुझे सुबह उठ के यहाँ ऑफिस आने का मन क्यों करता है? is because he is someone very transparent, very clear and someone जिनका मकसद ये है कि सामने वाले की ग्रोथ होती रहे, वो अपनी ग्रोथ को लेके restricted नहीं है. He wants everyone to grow when you are working with him. I am probably the youngest one working here and मैं ये बोल सकता हूँ कि since the time I have been working with this brand, I have only seen growth. मैंने सिर्फ growth देखी है अपने करियर में. Currently I am serving as the chief operating officer and I know the amount of learnings, कितना मैंने सीखा है, कितना कमाया है, जो भी है. मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ जो नए बच्चे आते हैं काम करने के लिए, मेरे लीडर्स भी यही बोलते हैं कि जब आप इनरेक्स के साथ जुड़ते हो तो अपने आप को लकी इसलिए समझो क्योंकि हम आपको जिस तरह से ट्रीट करते हैं ना, कोई और कंपनी नहीं कर सकती. वी मेक यू फील लाइक होम, सिक्योर, सेफ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट आगे करते भाई, मेरा ही फोटो. ओके, मीट अवर लीडर्स. लेट्स स्टार्ट विथ मिस्टर राहुल सिंह परिहार. ही इज करंटली सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग. Works at the headquarter, very hard workings. He has been in the company since the very beginning. मतलब जब से शायद मैं भी नहीं था तब से ये कंपनी में वो हैं and he has a very vital role to play जो भी अभी तक हमने growth देखी है. Mr. शिवम त्रिपाठी, General Manager Sales and Marketing, one of the very few people जिससे आप मिलेंगे और आपको realize होगा कि भाई performance is everything. One of the top performers of our company, consistent performers of a company. नंबर्स में बात करना पसंद करते हैं. मिस्टर पंकज महापात्रा, बहुत वाइड एक्सपीरियंस है, 9-10 साल का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से काम करके रखा है. मतलब जब मैं इंडस्ट्री में आया भी नहीं था तब से इन्होंने तो 8-10 साल का एक्सपीरियंस तभी इनको हो गया होगा. मिस्टर अरुण कुमार, सेम 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस. आगे करिएगा. मिस्टर शिवा करकी, वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिसको आप मिलेंगे, मतलब अभी फेस से देख लीजिए बट डिफिकल्ट टू रिमेंबर नेम, बट आप जब मिलेंगे तो ऑप्टिमिज्म, फ्यूचर
को देखने वाले, आप कोलैबोरेशन, देयर इज नो मतलब क्या बोलते हैं उसे, कंपटीशन वाली जो नेगेटिव कंपटीशन वाली वाइब नहीं आएगी इस व्यक्ति। ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ। मिस्टर रघुनंदन कुमार, सेम, currently serving as general manager sales and marketing, expertise in plots, basically land is something that he possesses expertise. Mr. Sujit Mehta, similarly in lands, currently serving as vice president sales and marketing. It is very important for you to understand कि मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कल आप जो हमारे साथ काम करेंगे तो you should know the pillars of the organization, so that you can, if anybody you see here you want to go and talk to them, आप अपना extend कर सकते हो और you can seek help इन सबसे बिना हिचकिचाए। Mr. Subodh, currently serving as general manager sales and marketing. Shyam Sundar Dwivedi ji, vice president sales and marketing. Surinder Sekhar ji and Mr. Raja Kumar, these two people are vice president sales and marketing, but they work at our Patna branch. So जो पटना ऑफिस है उसको ये हेड करते हैं। We have office in Patna as well. Yes. Okay, this is something that very important. भाई आप जिस ब्रांड से जुड़ रहे हैं, अगर वो बहुत बड़ी नहीं है तो बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा कि हम उसे ट्रस्ट ही नहीं कर सके, right? It is very important to have positive numbers, right? Last में real estate is all about numbers. It's a number game. So let's start with 2021. We did roughly 10 CR. This is where the company was founded, struggling. आप स्ट्रगल करते हो स्टार्टिंग में, बहुत छोटी टीम होती है, slowly gradually you grow. So this was our turnover of 10 CR. 2022 was roughly 18 CR, so we grew by 80%. This is a jump of 80%. Now when you talk about 2023, the forecasted revenue was 30 crores, but I think with your help और आप लोग की हेल्प की वजह से शायद we have already surpassed the number और हम शायद इससे कहीं ज़्यादा अचीव करेंगे. So we have already surpassed this number. But if you work hard with us, collaborate with us, सब साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो ये नंबर शायद 2 गुना हो जाएगा बड़े आराम से by the time we hit March. Alright. Okay. पटना में ऑफिस है, आप जहाँ बैठे हैं वो हेडक्वार्टर्स है. Our new office that is coming in Lucknow, so this will be another 1.5-2 months. We'll have another office. Then we plan an office on the expressway. Next. हम ना चैनल पार्टनर प्रोग्राम रन करते हैं, तो वहाँ पे हम ब्रोकर्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ बहुत काम करते हैं. और one of the reasons why we have grown very fast in last, the reason for the growth of our organization in last 9-10 months is because हमारे साथ जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स और कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया हमसे और हमारी ब्रांड को उन्होंने चुना कि हमारे साथ वो जुड़ के काम कर सकते हैं और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने करियर को, मतलब उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया अपने करियर के लिए. सो दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी थैंकफुल. जो भी हमारे साथ चैनल पार्टनर प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू एवरीवन. इट मींस द वर्ल्ड टू अस कि आपने हमें चुना आउट ऑफ एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हैव इन द सिटी. आगे करिए. हाँ, अभी गोवा भी गए थे, तो ऐसा नहीं है कि सब काम धाम करते हैं, मजे भी कर लेते हैं. तो अभी गोवा गए थे, 40-45 लोग गोवा गए थे, पूरे मस्ती की 5 दिन. अभी फिर एक ट्रिप अनाउंस होने वाली है, तो फिर उसके लिए भी आप लोग रेडी हो जाइए. उसके बारे में अनाउंसमेंट आई थिंक वेरी सून आपको समझ में आएगा कि कब जाना है और कहाँ रहेगी ट्रिप. तो मजे भी करते हैं, ऐसा नहीं है. Okay, this is something that is very important. The brands that we work with, from Door to M3M to Land Science, Godrej Properties. I think ये सारे brands आपने सुना है, right? Give me a cheer, please. You all have heard about M3M, Godrej, right? Yes, sir. ATS, Eldico, Saya, CRC, Masters. You name the brand, and we are currently working with them. And the ones that you don't see यहाँ पर शायद आपने नहीं देखा या नहीं दिख रही होंगी, we are already working with them. We are working with all sorts of projects. From farmhouses to luxury residential apartments to residential apartments to affordable housing to aspirational housing to office spaces to commercial shops. You name the product and we are in it. So we have a very diversified portfolio, and this is it for the index. To invite the founder of Index.com, can we have a round of applause for Mr. Bhaskar. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आप
सब इंडस्ट्री में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत खुशी है कि आप सारे लोग एक साथ इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे हम जमा हैं। एक पर्टिकुलर आगे फर्दर हम किसी प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से हम उसको इनकैश करेंगे, मार्केट में किस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो एक्सप्लोर करेंगे, उसके लिए आज हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के डिस्कशन करेंगे। एक छोटी सी चीज जो ऐड ऑन करनी रह गई है वो ये है कि आज हम सब लोग जो यहाँ गैदर हुए हैं, कुछ हमारे ऑलरेडी नोन लोग हैं जो ऑलरेडी इस कंपनी के पार्ट हैं रेगुलर बेसिस पे, कुछ लोग अभी आने वाले दिनों में पार्ट बनेंगे। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चेंज है जिसको कि हम सब अपडेटेड होना बड़ा जरूरी है हम सबके लिए। और मुझे लगता है कि अगर मेरी सर्विस में कल तक अगर 5 लोग थे और आज से अगर वो 10 लोग हो जाते हैं, 15 लोग हो जाते हैं मेरी सर्विस में, तो मेरे लिए मेरी जर्नी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। आई एम श्योर आप सब इस बात को रिलेट करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या किसी भी इंडस्ट्री में अगर मुझे सर्व करने वाले लोग, नंबर ऑफ लोग बढ़ जाते हैं तो मेरी सर्विस, मेरी ओवरऑल बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनहेंस करेगी। मेरा सपोर्ट बढ़ जाएगा अगर, तो मेरा बिजनेस और कई गुना बढ़ेगा। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनरेक्स के ओवरऑल जर्नी में एक बहुत फॉर्चुनेटली बहुत बड़ी एक जो कह सकते हैं हम, एक ऐसा हाथ, एक ऐसा सपोर्ट, एक ऐसा पिलर जुड़ गया है जिसमें कि एक इनरेक्स या इनरेक्स से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आप सब लोग जितने भी लोग हैं, उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, बहुत सपोर्टिव होने जा रही है और बहुत बड़ा विजन को अचीव कर लेंगे। इस इतने बड़े सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ ऐड ऑन हुआ है, बहुत फॉर्चुनेट है हम इस बात को, जो मैं इस बात को बोल रहा हूं। इसमें मैं कुछ नाम लूंगा। मिस्टर अवधेश कुमार जो कि इंडस्ट्री के एक बहुत लीडिंग, एक अपने आप में प्रोफेशनल हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में ओवरऑल 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, और उनके बारे में बताना मुझे लगता है कि आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग उनको अच्छे से जानते भी हैं। बिल्डर्स उनको अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, उनके ओवरऑल करियर में बहुत सारे मुकाम देखे हैं लोगों ने। तो वो इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा ताकत इनरेक्स के ओवरऑल जर्नी में एक बहुत बड़ा एड ऑन रोल प्ले करने जा रहा है। एज ए डायरेक्टर अवधेश सर हमारे को मेंटोर करने जा रहे हैं, कंपनी के ओवरऑल पार्ट बनने जा रहे हैं, कंपनी के पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए, इनरेक्स से जुड़े हुए हर एक पर्सन के लिए। मिस्टर अवधेश कुमार, मुझे लगता है एक बार हमें जोरदार ताली बजाएं। और मैं कुछ 10, 12, 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अवधेश सर का साथ पिछले 5 साल, 7 साल, 10-10 साल, 12-12 साल से छोड़ा नहीं है और सर के साथ लगातार ग्रो करते जा रहे हैं और अपनी आगे की जर्नी को भी लेके जाएंगे आगे, आई एम श्योर। और आप सब लोग जितने लोग इनरेक्स के साथ अब जुड़ने जा रहे हैं या रेगुलर बेसिस पे हम आगे बिजनेस को अपने एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, उनके लिए ये अवधेश सर के रूप में या अवधेश सर के जो ओवरऑल जो बहुत बड़ी फोर्स जो है, जो जिनको 15 लोग 12 लोग लीड करते हैं, उनके रूप में बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने जा रहा है। आप सब लोगों को बहुत एडवांटेज मिलने जा रहा है। उनमें से कुछ लोग, विराज कुमार व्यापारी जो आप सबके बीच में हैं, दीपक कुमार जी, पूजा, संतोष कुमार जी, दिवाकर, आई थिंक खड़े हो जाएं वो लोग जिनका नाम लिया जा रहा है। हाँ, अगर यहाँ जो लोग हैं एक बार आई एम श्योर खड़े हो जाएं। आई थिंक कम इन द फ्रंट, एक बार आ जाइए प्लीज आप लोग। देवी प्रसाद जी, मनीष कुमार जी, कमलेश जी हैं शायद, या क्या लिखा, कामेंद्र जी, सॉरी, हरीश कुमार जी, राजेंद्र चौहान जी, दिवाकर, संतोष जी जो मैंने पहले बोला। हाँ, अभी कुछ लोग शायद आज नहीं है, आई थिंक 2 लोग। तो ये वो ताकत है जो बहुत बड़ा एड ऑन रोल प्ले करने जा रही है, बहुत बड़ा
रोल प्ले करने जा रही है और आप सबके करियर में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम ऐड होने जा रहा है। अब तक जिन लीडर्स के बारे में आपने सुना वो ऑलरेडी जो लीडर ऑलरेडी आपको सर्व कर रहे थे, या कुछ लीडर्स ऐसे थे जो आज अभी यहाँ पे भी नहीं है, वो भी ऐड ऑन हो रहे हैं। ये सारी लीडरशिप जो है वो आपको सर्व करने के लिए और आपके बिजनेस में हैंड होल्डिंग के लिए और डे टू डे आपकी हर छोटी से छोटी सपोर्ट के लिए, छोटे से छोटे इशू के लिए रिसॉल्व करने के लिए हर समय 24 आवर्स, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से डेडिकेटेड 10 साल 12 साल का करियर रहा इनका, मैं जितना समझता हूं जानता हूं, ये हर समय हर टाइम खड़े हैं आपके लिए। तो अब जो 10-12 लोगों का जो लीडरशिप वाला परिवार था वो अब इस समय कम से कम 25 लोगों का परिवार बन गया है। तो आप सबके लिए जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सपोर्टिव होने जा रही है। तो एक बारी सारे लीडर्स के लिए दोबारा से आप सब लोग बनाएं। और एज ए इंडेक्स मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं। थैंक यू सो मच सर, आप सब लोगों के लिए जिस तरीके से आप लोगों ने अपना करियर अब तक जिया है, जिस तरीके से परसू किया है, मुझे लगता है कि हम कॉमन विजन को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे और जितने लोग इंडेक्स के भरोसे के साथ जुड़ रहे हैं उन सब बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने जाएगा। आने वाले कुछ मिनट में हम अभी समझेंगे। तो एक बारी सर आप थैंक यू सो मच फॉर वॉर्म वेलकम। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और कहीं ना कहीं मैं थैंक यू करना चाहूँगा अमित जी का। नो डाउट कि हम पहले से जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी आई, हमने डिस्कस किया तो हमने कहा ठीक है, बनाना तो है, क्यों नहीं साथ चलते हैं, क्योंकि विजन एक है, क्लियरिटी एक है, गोल एक है। और कहीं ना कहीं जो अमित जी का एक स्वभाव है कि पहले दूसरे को आगे बढ़ाना है, वो काफ़ी कुछ बहुत इंटरनली मैच करता है हमारा एक दूसरे का। सो हम एक साथ आ गए और एक साथ आ गए तो फिर अब आपके लिए तरक्की के दौर जो है बहुत तेजी से ओपन होने वाले। थैंक यू। और मैं इतना वादा करता हूँ आप सभी से, जो ये टीम है हमारी जो इधर बैठी हुई है और ये टीम भी हमारी टीम है, आप एनी टाइम कुछ भी कैसे भी, क्योंकि लास्ट करीब 17 ईयर सेल्स में हो गए हमें, अब कुछ भी कोई भी पॉइंट जहाँ भी आपको लगता है आप अटक रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है, आगे हम ट्रेनिंग रखेंगे तो उस पर बात हो जाएगी, 1-to-1 बात होगी, वैसे भी बात होगी। तो हम फेस टू फेस होंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूँगा जो भूटानी ग्रुप से आए हुए हैं। मिनट टाइम लेंगे आपका, 20 मिनट, और वो अबाउट भूटानी ग्रुप क्या है, उसकी मार्केट में प्रेजेंस क्या है, क्या ब्रांड उसकी वैल्यू है, कितने प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए हैं और आगे उनका क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस चार्ट है। तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। क्या प्रोडक्ट आज इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं और वो प्रोडक्ट आपके क्लाइंट को और आपको कितना इंपावर करने वाला है। ये आफ्टर मीटिंग ऑफ वैभव जी, मैं आपके साथ और 15 मिनट बात करूंगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करने वाला है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए ओवर टू वैभव जी। मेरा नाम वैभव खन्ना है। मैं भूटानी के साथ पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ। 5 साल में करीब मैंने 3 प्रमोशन लिए हैं। मैंने भूटानी को एज अ मैनेजर ज्वाइन किया था, आज मैं जनरल मैनेजर की पोजीशन में। भूटानी को मैंने अपने सामने ग्रो करते हुए देखा है। मेरे को याद है आज से 5 साल पहले, कोविड से पहले मैंने ज्वाइन किया था, आई थिंक इन द ईयर ऑफ 2019, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019। तब हम लोग साइबरकम लॉन्च करने वाले थे, एल्फाथम का हम प्रोजेक्शन देने वाले थे, तो साइबरकम लॉन्च करने वाले थे। आज अगर मैं भूटानी की बात करूँ, भूटानी इज द लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर कमर्शियल इन नोएडा। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, एस्टैब्लिश हुआ था 1986 में। भूटानी एज एन NBFC कंपनी थी, इट इज नॉन बैंकिंग फंडिंग कॉर्पोरेशन। हम लोग क्या करते थे, बड़े बड़े बिल्डर्स को हम लोग लोन देते थे। बाय द टाइम 1996 में हमारा खुद का भूटानी का जो आशीष भूटानी जी हैं, जो उनके फादर प्रेम भूटानी, उनके खुद के एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने उनका एडवाइस किया, व्हाई डोंट यू बी एज अ बिल्डर इन द, अब बिल्डर क्यों नहीं बन जाते। तो बाय 1996 में हम लोग एज ए बिल्डर, कमर्शियल बिल्डर के तौर पे हम लोग एस्टैब्लिश हुए
हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था, सबसे पहला प्रोजेक्ट वो आया था 2000 में। 2000 में हम लोगों ने करकरदुमा में परमेश कंस्ट्रक्शंस के नाम से 6 टावर बना के डिलीवर किए हैं। आप उधर जाओ कभी भी देख सकते हो, 6 के 6 टावर टोटली डिलीवर हैं। वहाँ पे फूड कोर्ट से लेकर रिटेल शॉप सारी हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। हम लोग ने वैशाली में गाजियाबाद में एक ही मॉल है जो है WSM वर्ल्ड स्क्वायर मॉल। आप कभी गाजियाबाद जाते हो आपको दिख जाएगा, बिल्कुल टक्कर पे वर्ल्ड स्क्वायर मॉल है। वर्ल्ड स्क्वायर मॉल की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड स्क्वायर मॉल को पहले हमने बनाया, उसको पहले रिजर्व किया, फिर उसको हमने उसको सेल करना शुरू किया। आज वर्ल्ड स्क्वायर मॉल वहाँ की एक रिनाउंड प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज, पहले इसका नाम वर्ल्ड स्क्वायर मॉल था, अभी रिसेंटली हमने इसका नाम चेंज करके सिटी सेंटर गाजियाबाद कर दिया। वहाँ पे आपको रिटेल शॉप से लेकर फूड कोर्ट से लेकर मल्टीप्लेक्स सब कुछ है। उसके बाद हम लोग हुए सेक्टर 62 में। सेक्टर 62 में हमने फ्रंट पे पुरैंथम बनाया हुआ है, पुरैंथम की बैक साइड पे आइटम। ये दोनों प्रोजेक्ट बना के हम लोगों ने डिलीवर किए हैं। दोनों जेबी थे, जॉइंट वेंचर थे। उसके बाद हम लोग ने एक्सप्रेसवे पे हम लोग मूव ऑन हुए। एक्सप्रेसवे से हार्डली अगर आप एमईटी की तरफ से जाओ, एमईटी से थर्ड एग्जिट लेना आपको, थर्ड एग्जिट लेकर आपको बालक इंटरनेशनल स्कूल आएगा। बालक इंटरनेशनल स्कूल से हार्डली 500 मीटर्स पे हमारा प्रोजेक्ट है एल्फाथम। आज जो हम लोग बात करेंगे एल्फाथम की करेंगे। अगर मैं एल्फाथम की बात करूं, ये हमने 2016 अप्रैल में लॉन्च किया था। जब हमने इसको लॉन्च किया था तो इसका रेट था ऑफिस बेसिस का 5000 पर स्क्वायर फीट। मैं थोड़ा सा आपको इसकी लोकेशन के बारे में समझा देता हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट को चलने के लिए उसके 3 फैक्टर्स मैटर करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है लोकेशन। आपका प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं, इसकी लोकेशन क्या है, आसपास करीब 5 किलोमीटर के रेडियस में सारे के सारा रेजिडेंशियल, जहाँ पर मोर देन 10 लाख फैमिलीज इस टाइम पर रह रही है, सारे का सारा रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल के अलावा इसके बगल में सारे IT टावर्स भी बन रहे हैं। अभी मैं इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी बिल्कुल हार्डली 200 मीटर्स के दूरी पर इंडिया टीवी का ऑफिस है। इंडिया टीवी का ऑफिस आप लोगों ने आपके पहले देखा होगा, सबने रजत शर्मा का शो, आई होप सबने देखा होगा। रजत शर्मा का जो शो जो शूट होता है, वहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट बन के निकलता है। अंदर से ही सिर्फ 500 मीटर 200 मीटर की दूरी पर हमारा नया प्रोजेक्ट बन जा रहा है सागरथान, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। आज हम बात करेंगे एल्फाथम। अब एल्फाथम के बारे में आपको एक और चीज बता रहा हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट के चलने के लिए पहला फैक्टर आपको लोकेशन बताया। लोकेशन में एक और चीज आती है कि आपके आसपास मेट्रो पॉइंट्स हैं। इसके आसपास 2 मेट्रो पॉइंट्स हैं, सेक्टर 107 मेट्रो है, सेक्टर 142 मेट्रो है। साथ ही इसमें बस इसके बिल्कुल बगल में लगभग 10 टर्मिनल भी है। अभी देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में चलने के लिए 3 तरह के लोग होने चाहिए। सबसे होता है अपर क्लास, फिर होता है मिडिल क्लास, फिर होता है लोअर क्लास। अपर क्लास गाड़ी से और बाइक से ट्रैवल करता है, ठीक है। मिडिल क्लास जो करता है मेट्रो से करता है, और जो लोअर क्लास के लोग वो करते हैं बस से ट्रैवल। तो हमारे प्रोजेक्ट पे पहुंचने के लिए हमारे पास पूरा फैक्टर्स अवेलेबल है। और दूसरी चीज ये है, आज के टाइम पे जब हमने इसको लॉन्च किया था, जब उसको इसके आसपास कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। आज के टाइम पे इसके आसपास बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं और सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, तो इस तरह के हैं। अब सबसे बड़ी बात, इस टाइम पे नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा इज द मोस्ट डेवलपिंग सिटी राइट नाउ। अगर मैं नोएडा को नाम से कंपेयर करता हूँ, तो गाँव में सबसे बड़ी दिक्कत आती है सीवरेज की। वहाँ पर जैसे बारिश होती है, आप सबको पता पानी कितना ज्यादा भर जाता है। हमारे नोएडा में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे बिल्कुल नहीं। सामने एक्सप्रेस वे से हार्डली 500 मीटर की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट है। मैं चाहूँगा एक बार आप सब लोग आकर हमारा प्रोजेक्ट विजिट करो, उसको देखो, उसको समझो, क्योंकि बिना देखे मैं आपको जितना भी बोलूँ मैं वो चीज़ क्लियर नहीं कर पाऊँगा। हमारा प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूँ, इसकी 29 फ्लोर के लिए टॉवर चलती है, रेंटेड प्रॉपर्टी है। क्लाइंट आज पैसा देगा, कल वो डिस्ट्रिक्ट है, कल वो अपना शिफ्ट होगा। दूसरी चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, इसमें इसकी बैक साइड पे हम लोग जो लेके आ रहे हैं, बैक साइड पे सारे विलास हैं। इसकी टावर A, B, C, इसके पीछे एक टावर B है और उसके पीछे टावर E है।
कवर होने सारे स्टैंडर्ड पार्टनर्स हैं, वो सारे के सारे हम लोग एक प्रोडक्ट चेन को हम लोग उसको दे रहे हैं, रिसोर्ट कर रहे हैं। और ये तीनों टावर्स और इसके पीछे के 3 टावर्स हमको हमारे पास सारे ऑफिस पे नीचे सारा रिटेल है, रिटेल के बाद सारे ब्रांड्स आए हैं यहाँ पे, मैकडॉनल्ड्स से लेकर यहाँ पे बारबेक्यू कंपनी से लेकर सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं। आपके क्लाइंट को इस टाइम अगर आप बोलोगे ना कि भूटानी का प्रोडक्ट है, वो एक बार आपकी बात जरूर सुनेगा, क्योंकि भूटानी सिर्फ मार्केटिंग पे, ट्रस्ट भी सिर्फ मार्केटिंग पे 1 करोड़ रुपए महीने का खर्च करता है, ज्यादा करता है। आज अगर आप दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड करोगे, वहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। सर अब जैसे मैं चाहूँगा कि इथीलिया की भी वीडियो प्ले कर दी जाए, इनको थोड़ा सा मैं इथीलिया मैंने आपको एक मेल की वीडियो प्लीज चेक कर मैं आपको एक बार को अंदर से दिखाता हूँ देने वाले नीचे वाले। आज आप दिल्ली से, नोएडा से कहीं भी चले जाओ, यूपी साइड में चले जाओ, हरियाणा साइड से चले जाओ, यहाँ पे पंजाब की साइड में चले जाओ, हर जगह आपको भूटानी के बोर्ड नजर आएंगे। एयरपोर्ट पे जाते हो, एयरपोर्ट पे भूटानी की मार्केटिंग है। आज अब भूटानी ये रिसर्च बोर्ड में भी मार्केटिंग आपने करवाई थी, वहाँ पे भी मार्केटिंग भूटानी सिर्फ मार्केटिंग पे इतना पैसा कर देता है कि आज आप अगर किसी क्लाइंट को इतना बोलोगे कि मैं आपको जो प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ वो भूटानी का प्रोडक्ट है, तो आपका क्लाइंट एक बार आपके पास उसका रीजन है हमने प्रोडक्ट बना के डिलीवर किए हैं, उसके ऊपर क्लाइंट्स को एप्रिसिएशन दी है। आप मानो कोविड में जिस टाइम पे कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट नहीं चला रहा था, हम लोग उस टाइम पे क्लाइंट्स को एश्योरेंस दिए हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट है इसका। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है सारा, ये ऑफिस है, आप जाकर बोर्ड पे अपने नाम लिखिए। नोएडा मार्केट को अगर किसी ने कमर्शियल के द्वारा खड़ा किया है, ट्रस्ट मी वो भूटानी है। एक टाइम आया था जब लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करने से डरने लगे थे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई थी। लेकिन 2016 में जब मेला आया और जब भूटानी आकर भूटानी ने चीजें मूव की, दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है कमर्शियल में। ये वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज भेज सर और मैं आपको प्ले करूंगी। प्रोडक्ट का नाम है इथीलिया। बेसिकली इथीलिया होता क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने कोवर्किंग स्पेसेस का नाम सुना है? कोवर्किंग स्पेस कोई मुझे बता सकता है क्या चीज होती है कोवर्किंग स्पेस? एनीवन यू कैन एक्सप्लेन मी इन वन सेंटेंस, बताइए। हेलो, यस सर। कोवर्किंग स्पेस फर्स्ट आपने अपने नाम बता दीजिए। माय सेल्फ आकाश कुमार। ओके, कैरी ऑन। कोवर्किंग स्पेस स्पेशली उन लोगों के लिए तैयार किया जाता है जो फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं, ठीक है। वो किसी ऐसे इंडिविजुअल कंपनी से जुड़ के, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो ऐसे स्पेस में बैठे जिसमें उन पे ना कोई प्रेशर हो, ठीक है, वो अपना फ्री टाइम वहाँ पे यूज कर सके और वो अपना कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे अपना काम कर सके। तो ऐसे में एक ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट में कोवर्किंग स्पेस तैयार किया जाता है। लोग उसको पेड अप करके वहाँ उस स्पेस को एक्वायर करते हैं, लेते हैं और वहाँ अपना काम करते हैं। इसमें मेनली 60 से लेके 80 स्क्वायर फीट तक का एरिया दिया जाता है फॉर सिटिंग। थैंक यू। बिल्कुल सही बोला भाई मेरे, प्लीज एक मिनट याद करो। मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहूंगा एग्जैक्टली कोवर्किंग स्पेस होता है। कोवर्किंग स्पेस जो होता है 67 स्क्वायर फीट के व्यू से होता है। एक कोवर्किंग स्पेस एक टेबल होती है, ठीक है। आप कोई फर्निश प्रोडक्ट होता है, क्लाइंट को सिर्फ अपना लैपटॉप लेके वहां पर जाना है, आपको चार्जिंग प्लग इन
वहाँ पे अलग अलग व्यू होते हैं, आपको सिर्फ अपना लैपटॉप लेकर जाना, अपना चार्ज करो और अपना काम कर सकते हो, जिसके लिए आपको बेसिक एक रेंट देना होता है, उसको बोलते हैं कोवर्किंग स्पेस। मैं आपको बताता हूँ कोवर्किंग का फ्यूचर क्या है। देखिए आज के टाइम पे अगर आप एक कंपनी चला रहे हो, कंपनी में आपके पास 10 से 15 लोग हैं, ठीक है, 10 से 15 लोगों के लिए आप 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का ऑफिस एक किराया करोगे, ठीक है, और आपको जो रेंट देना है वो 10 से 15 सीट्स के लिए आप जो ऑफिस लोगे उसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 1500 स्क्वायर फीट का आपको 8000 रेंट देना पड़ेगा। सपोज करो आपने आज जो काम कर रहे हैं उसमें 3-4 लोगों को छोड़ दिया, अब आपके पास जो कितने लोग बचे 11, लेकिन आपको जो रेंट जाएगा वो 1500 स्क्वायर फीट का ही जाएगा। वो तो स्पेस इसलिए यूजेबल है। सपोज करो आज आप मेरे से 50 से प्लान करते हो, आज आपके पास 15 लोग हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना लैपटॉप लेके अपना काम कर रहे हैं, आप उसका रेंट पे कर रहे हैं। कल को अगर उस पे से 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, अपनी जॉब छोड़ दी, तो आपको जो रेंट है वो सिर्फ 10 लोगों का देना है। इससे क्या होता है, कॉस्ट कटिंग होती है। ये जो प्रोडक्ट है ये आज कोविड के बाद ही आने वाला फ्यूचर है इंडिया में। अगर मैं बात करूं जाता है उसकी एक बेसिक कॉस्ट होती है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे वर्क करता है, वो सारा आपको बेसिक है, ठीक है। भुगतानी के बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको करना है तो प्लीज मुझे करें, लेकिन नेक्स्ट मैं आई एम गोइंग टू हैंड ओवर द माइक टू मिस्टर अब्दुल। भुगतानी के बारे में सबको नॉलेज हो गई है, बता दें मैंने भुगतानी पिछले 25 साल से है इस काम में एज ए बिल्डर, और आज हमने जो भी बना के डिलीवर किया है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारी 1.5 से 2 लाख की क्लाइंटेज है मार्केट में। आप कहीं पे भी आप रेडियो एफएम पे कहीं पे भी भुगतानी के बारे में सुनते हो गए, क्योंकि भुगतानी की मार्केट कितनी होती है। हमारे इस टाइम पे जो अपकमिंग अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो रिवर प्रोजेक्ट आपको बताती है जिससे आपको कैलकुलेशन मिलती है, ठीक है सर। आवाज जो है पीछे तक सही से जा नहीं रही, आ रही आवाज पीछे तक? वो मेरे
आज के 12 साल पहले किसी मेरे मित्र ने कही और मेरे फ्रेंड आज की डेट में IIT प्रोफेसर है। आई थिंक क्वार्टरली करीब 150 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर मुझे लगता है आउट ऑफ इंडिया से आता है। और जैसे कि शुरू में धर्म जी ने बताया कि हमारे क्लाइंट दुबई पहले से हैं आया ना, तो हम सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जब आप वापस आते हो तो वहाँ से भी कन्वर्जन बहुत अच्छा आएगा। कहानी जैसे कि मैंने बताया कई 35 ईयर ओल्ड ब्रांड है कंचनजुंगा पोर्ट सभी जानते हैं। 6 टावर हाउस ने डिलीवर किए हैं, डिलीवर कर दिए, डिलीवर एंड ट्रांसफर को आता है। सातवां प्रोजेक्ट मैंने बताया कि आपका वर्ल्ड स्क्वायर मॉल है, ठीक है, वो भी बना है, डिलीवर एंड पर्सनल है। 8वां प्रोजेक्ट में वर्ल्ड स्क्वायर हॉस्पिटल मैंने बनाया है। 9 जो फेमस हुए पुरानी को वो है साइबरकम और अल्फादम। यस या नो? पहला फेमस प्रोजेक्ट इसका यही है, तो यहाँ पे स्लाइड नहीं थी आगे अल्फादम। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी क्या है? जनरली जो कमर्शियल प्रोजेक्ट तो बहुत है पूरे दिल्ली NCR में, एंड नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट नया नहीं है, राइट? बट ये कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। लैंडमार्क प्रोजेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि ये थीम पे बना है। हमें से सिंगापुर कितने लोग हैं? ओके, अगर आप सिंगापुर जाते हैं और दुबई कितने लोग हैं? राइट, तो कोई बात नहीं। अमित जी अगर सुन रहे हैं तो अमित जी दुबई और सिंगापुर दोनों के कॉन्टेस्ट कराए जाए। 100%
लोकेशन हो सकता है। देखो लोकेशन दो तरीके की होती है, एक पॉइंट ऑफ लोकेशन और एक एरिया ऑफ लोकेशन। आप जब दिल्ली में बैठे हो तो किसी को नोएडा में दिखा है, कोई किसी का बैग है 18 लाख रुपए आप नोएडा में लगवा रहे हो, नोएडा जैसे शहर में। आपको पता है नोएडा, नोएडा के बारे में 25 पॉइंट कोई बता सकता है? 10 पॉइंट लोग नोएडा के बारे में 10 पॉइंट बता सकते हैं। नोएडा नहीं कर रहे हैं। नोएडा वर्ल्ड क्लास सिटी है, वेल प्लान सिटी है, 65% ग्रीन बेस्ड है, 35% सिर्फ कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। वेल प्लान है, 4 इंडस्ट्रियल
चेंज होता है और ना आपकी वजह चेंज होती है, आपकी सेम वैल्यू मार्केट में बरकरार रहती है। आपके पास काम बटा है 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 जितनी सी भी चाहिए आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, और आप अभी कोई ट्राई रखने की जरूरत नहीं है। और एक और बहुत बड़ा फीचर है इसका, जैसे आज के डेट में ना कहते हैं कि आप किसी अच्छे क्रिएटर को चला रहा होगा तो वर्किंग को जब आप उसको देते तो एक आईडी जनरेट कर देता है। लाइक इसको समझ सकते हो आप, जो बड़े बड़े कोवर्किंग चलाने वाले नाम है, किसी को पता हो नाम के बारे में? वीवर नोएडा सर, वीवर जो है मोर देन 40 कंट्री में काम करता है। वीवर स्पेस रीडर्स कोवर ऑफिस ऐसे करीब मोर देन 35 ब्रांड हैं जो पूरी की पूरी बिल्डिंग लेते हैं और आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से कोवर्किंग में कन्वर्ट करके, और आप कोवर्किंग में सिर्फ ऑफिस नहीं बेच रहे, कोवर्किंग में दुकानें भी बिकती हैं, जो शॉप्स हैं रिटेल्स हैं वो कोवर्किंग में बिकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बीकानेर वाले को अपना वो खोलना है तो उसे कितने स्क्वायर फीट चाहिए? 10,000 स्क्वायर फीट चाहिए। किसी मैग्नेट को अपना आउटलेट खोलना है 5 से 7,000 स्क्वायर फीट चाहिए। बारबेक्यू को खोलना है 8 से 10,000 चाहिए। कौन है 2-10,000 का रिटेल खरीदेगा? आप में से किसी ने बेचा है किसी एक कस्टमर को 10,000 स्क्वायर फीट? क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट ही 3 करोड़ का बैठता है, तो 10,000 स्क्वायर फीट 30 करोड़ का तो लगाएगा नहीं। तो वो 100 स्क्वायर फीट में स्प्लिट किया है और हर डेवलपर स्प्लिट कर रहा है, तो 200 स्क्वायर फीट बिकता है। अगेन आप कस्टमर को बोल सकते हो कि अगर आप 200-250 स्क्वायर फीट की लॉकेबल प्लॉट लोगे या लॉकेबल ऑफिस लोगे, अगर आपको उससे नहीं खोलना है तो उससे नहीं चलाना है तो इसको लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपको उसे रेंट पे भरना पड़ेगा और 6 महीने बाद अगर वो खाली हुआ तो दोबारा ब्रोकर को फोन करो, उसे अगेन पैसा चाहिए वो चलाएगा, है कि नहीं? और अगर आपने कोवर्किंग एरिया रिटेल में या ऑफिस में, कोवर्किंग में रिटेल में लिया तो आपका क्लाइंट कौन हो सकता है? आपका टाटा भी हो सकता है क्लाइंट। जिनको मैंने कोवर्किंग लोगों ने कहा भाई मैं नहीं समझ आती नहीं दुनिया की जानकारी, मुझे तो 200-250 स्क्वायर फीट दुकानें आज भी खाली पड़ी और वो हमें सोच रहे हैं तुमने क्या करा, रेट बढ़ गया लेकिन रेंट नहीं आ रहा है, तो वो दुकानें कौन लेगा? जिन्हें सीरियस मैच कोई लेगा, उसके लिए खाली ना रहेगा। अगर आपका कोवर्किंग में है तो आप कोई ब्रांड पे चले जाते हो, टाटा, हीरा या आपका ये, तो आप मतलब कोवर्किंग का मतलब क्या है? और ये बहुत बड़ा बिजनेस है जो कोवर्किंग का इंडिया में पूरी तरीके से चलेगा। ठीक है, आपको पता नहीं है तो बता दूं, रेट्स समझ रहे हैं? रेट्स कितने लोग जानते हैं? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेट्स का मतलब है वो भी ऐसे समझ लो इन्वेस्टर का पैसा लाकर इसी टाइप की कमर्शियल प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करा रहे हैं। अपने आप में क्रांति है और उसी क्रांति का छोटा रूप ये है। तो कोवर्किंग समझ गए, आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, बड़े सारे छोटे छोटे आपको एक ही मिल जाते हैं और बहुत कम रेट में आपको सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल जाती हैं। आपको किसी एम्प्लॉय का झंझट नहीं होता, चाहे कॉफी भी फ्री होती है, प्रिंटर में कोई टिक नहीं कराना होता, वाईफाई में लगवाना नहीं होता है, एसी की मरम्मत नहीं करानी होती, तो ये सारे टेंशनों से आईडी 8,000 रुपए पर सीट है, तो 10,000 रुपए महीने बता रहे हैं, ऐसा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, 10 से ज़्यादा हो रहा है। ये जो आपके सेक्टर 16 में 30 टावर बड़े बड़े दिखाया हम लोगों ने, एक WPT है, दूसरा बर्जर है और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? मैक्स
आसपास आता है। ये भी अभी पहले 150 यूनिट के लिए फ्री है, आप अपने कस्टमर्स को दिलवा सकते हो। तो आपके पास ऑल इंक्लूसिव रेट क्या आ गया? ओनली 8.5 लाख रुपए। और इस 8.5 लाख में आपको दिलवाना है 50% होता है 85,000 एंड 40% कितना होता है? दोनों मिला के 4,30,000 होगा। ऐसे ही कोई दिलवाएगा एट द रेट ऑफ 1% 4,250 रुपए उसको पर मंथ मिलेंगे, क्योंकि रेडी टू मूव है, आप डिग्री में खरीद सकते हो। अगर आपको डिग्री में नहीं खरीदना तो आप के पास 1% और एक यूनिट का निकाला है, लेकिन कस्टमर को एक यूनिट नहीं लेना है, एटलीस्ट 2 के जोड़े की बात करनी है। ठीक है, 50% पैसा 6 महीने बाद देना है और 70 रुपए प्लस वैलिडिटी दी जा रही है। कितने की? 70 रुपीज। 70 रुपीज कितना होता है? 70 रुपीज 67 करोड़ कितना आता है? 4,000 यानी कहीं ना कहीं 4,700 रुपए। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। कोई सब प्रॉपर्टी में रहते आया ना, सभी के पास है, ओके, किसी के पास बैठी होगी तो किसी की अपनी। करेक्ट, प्रॉपर्टी में 2 ही चीजें आती हैं, एक आती है ग्रोथ और दूसरा आता है कैश फ्लो। तीसरी तो कोई चीज नहीं। मैं बहुत इजी समझा, आप इसको इजी समझिए कि आप किसी को 2 यूनिट देते हैं तो आप कितना पैसा उसका लगवाते हैं? अगर किसी को 2 यूनिट देंगे तो कितना पैसा लगवाएंगे? 17 लाख, यानी 8.50 into आपका रॉड इसका ये हो जाएगा उसका 17 लाख। और उसको एक्चुअल रेंटल मिलेगा आफ्टर 6 मंथ कितना? 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यहाँ पर स्क्वायर फीट कितने हो गए? 67 into 2 134। 134 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना है? 9380। अब आप देखो कि रेंट उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है? एक्चुअल रेंट है, यानी कि अगर ये पैसा सामने वाले ने 17 लाख रुपए बैंक में रख के मैंने बताया आपका कंप्यूटर कोई नहीं होगा, सामने वाले के पास डेट फंड में पैसा पड़ा है, डेट फंड वो रेट ऑफ रिटर्न 5-6% होते हैं, 7% इससे ऊपर नहीं होता है। और वैल्यूज की डेप्रिशिएट होती है। डेट फंड होते हैं आपका एफडी, पीएफ, ये सारे डेट फंड। यानी कि पैसा यहाँ लगा दिया, वो 5 के 7% से बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? जितना उसकी कैपिटल एप्रिशिएट होती है, जितना भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर ये पैसा यहाँ रखा हुआ है तो उसको यहाँ से छोड़ देंगे, 17 लाख ऐसे 1,02,000 के आसपास में प्लस 70 डिवाइड बाय 12 को कितना होता है? ये 17 लाख रुपए अगर इसमें बैंक में रखे हुए हैं तो उसको कितना रिटर्न आ रहा हो? 1,02,000 डिवाइड बाय 12 को 8,000 8,500
आपको क्या लगता है सेल आएगी कि नहीं आएगी? यस या नो? यस। तो ये है ओवरऑल प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको आई थिंक कॉन्टेस्ट हमारे कॉन्टेस्ट क्या है आप खरीदेंगे इसमें मतलब पे आउट भी करना चाहते हो तो क्या मिल रहा है इसमें? कितने लोग करना चाहते हैं? तो ये है हम टॉप 10 में 70,000 ईच यूनिट का है। यानी आप किसी कस्टमर को दिलवाते हो 2 यूनिट तो आपको क्या मिलेगा? मतलब 1,40,000 का टॉप स्लैब है जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी कि बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जो आया है उसको 50% शेयरिंग करते हैं। उसके ऊपर जो है सेल्स मैनेजर 60% का शेयर होता है, सीनियर सेल्स मैनेजर को 70% शेयर होता है, जनरल मैनेजर बहुत बड़ी पोस्ट है जिसकी 25-30 लोगों की टीम है या वो 50 महीने का ₹1 करोड़ का टर्नओवर करता है तो obvious सी बात है कि वो एक्स्ट्रा डिजर्व करेगा। आज अगर दुकानी के पास जाए और बोले तुम्हारा महीने का हम 500 यूनिट बेचेंगे तो जो ये पैसा हमें दे रहे हैं उससे 500 देंगे कि नहीं देंगे? तुरंत नहीं, राइट ना? ऐसे ही सारा सिस्टमेटिक है, जैसे डिवाइड करते हैं डायरेक्टर लेवल पे ये जब हम कंपनी की अलग से करेंगे तो पूरा बता देंगे कि किस लेवल पे आप कैसे पहुंच सकते हो, कितने आइडियाज पहुंच सकते हो और कैसे एक आप हाई इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये इसका पे आउट है, यानी कि मोटा मोटा अगर 2 यूनिट आप बेचते हैं इसका कॉन्टेस्ट क्या है वो भी ये कॉन्टेस्ट है अपार्ट फ्रॉम मैट्रिक्स कमीशन, यानी कि अगर कोई 60% पे भी है तो कम से कम उसको 2 यूनिट बेचने में 80-90 हज़ार रुपए उसकी जेब में आएगा ही आएगा। और 2 यूनिट पे पैसा ज्यादा नहीं लाना, सिर्फ 8-8.5 लाख रुपए ही कस्टमर का लगवाना है। और इस बात की श्योरिटी मैं देता हूँ कि अगर कस्टमर से आप मीटिंग करके सही तरीके से इन्फॉर्म करके और कस्टमर की विजिट आपने करा दी तो ये गारंटी है कि 10 में से 6 लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं 2 लूं 4 लूं, 1 लूं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन यहाँ 10/6 का रेशो है कन्वर्जन का। ये मैंने बेचा हुआ प्रोडक्ट है इसलिए बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके क्लाइंट वाली किटी में भी आपके पास सबसे ज्यादा ऑप्शन है कि नहीं ऐसे करने के लिए। एज एग्जाम्पल